हाय। मैं दावा करती हूँ आपने मुझे पहले भी देखा है, बेशक इतने गौर से नहीं, पर हाँ, देखा ज़रूर है। मैं वही हूँ जिससे होके आप अपनी ज़िंदगी में आगे जाते हैं। यह जो सामने सीढ़ियाँ देख रहे हो ना, हाँ, यही। रोज़ यहाँ बैठे बैठे सब देखती रहती हूँ, बच्चों को आते जाते उनकी बातें सुनती हूँ और सब समझती भी हूँ। मैं यहाँ इन्हें आगे बढ़ते देखती हूँ। इतने सालों से काफ़ी कुछ देखा, और इस साल, अरे हाँ, इस साल भी देखेंगे और सुनेंगे। मैंने सुना कुछ नया होने वाला है कि बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ की तैयारी? जश्न की, खुद को निखारने की, जिसमें हार या जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खुद को सामने रखने की तैयारी। सब बहुत ही खुश हैं, जुटे हैं तैयारियों में। तो आइए मिलते हैं उन बच्चों से और सुनते हैं उनकी ज़ुबान से उन्हीं की कहानी। हेलो मुस्कान, कहाँ हो यार? आई एम गेटिंग बोर्ड। Okay, I'll be there. Oh, Chaitanya, that was quick. So we can't wait for this day when we will get to experience the rich culture, tradition and heritage with fun. Culture, tradition, heritage, it's all boring stuff, yeah. All I am excited about is the energy and fun. And a break from classes, of course. See, Chaitanya, Youth Festival is an opportunity for the students to get outside those four walls of the classroom and get to experience the creative sides of their friends and themselves. And what can be more fun than that? Now you are starting to sound fun. Every masterpiece begins with a single brush stroke, right? Yeah. Or with the first musical note or first tap of the foot. Every incredible journey starts with one step, but it is hours of practice for days together that makes it happen. From early morning rehearsals to practice till late night, this festival is all about dedication, passion and teamwork, fueling our quest for excellence. I think you heard us enough. Let's have a glimpse into the preparations for the festival this year. Because that's where the real magic happens. That's where the stars are born before the spotlight even hits. Yeah, you are absolutely right, Chaitanya, because at the end of the day, it's not just about competing, it's about the journey that shapes us. So let's dive into it. आर यू एक्साइटेड फॉर द यूथ फेस्ट? कैसा लग रहा है आपको? ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਟੀਚਰਸ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਖਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ मीन्स बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे। बहुत बढ़िया। और म्यूज़िक एक आर्ट है, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं हमें। अगर कोई इंसान म्यूज़िक करता नहीं है, नहीं बजाता, बट सुनना भी एक कला है म्यूज़िक को। म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो सब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਐਨਹਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਕੋਲ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ म्यूज़िक ਤਾਂ मीन्स एंडलेस है, मतलब ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ चीज़ नहीं है। बहुत अच्छा। और आप कितना टाइम देते हो प्रैक्टिस के लिए? रियाज वैसे देखिए, हम मतलब कंसिस्टेंट तो हर कोई रह नहीं पाता, बट हम कोशिश करते हैं कि हम दिन के 5 से 6 घंटे दे सकें। मीन्स हर एक चीज़ की तैयारी अपनी अपनी है। जैसे वोकल है, उसको कम से कम मेरे को लगता है जैसे मैं 2 to 3 आवर्स देता हूँ अपनी वोकल्स को, कई ज़्यादा भी देते हैं। ज़्यादा करोगे मतलब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘੱਟ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾ ਪਾਵੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਵੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੂਗਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਰੈਗੂਲਰ स्टडी करना। मेनली सारा ज़्यादातर जो वर्क्स होता है वो स्टेज आइटम में बहुत ही मुश्किल वाला वर्क होता है कि आपको परफॉर्म करके आपको दिखाना होता है, और आपके सामने कितने सैकड़ों लोग बैठे होते हैं जिनके सामने आपको परफॉर्म करके दिखाना होता है। और जो फर्स्ट टाइम जो कर रहे हैं उनके लिए तो और ही वो दुखदायक होता है कि हम कैसे सामने जाके अपने जो लोग जो बैठे हैं उनको कैसे फेस करेंगे, कैसे आँख से आँख मिलाएंगे और कैसे परफॉर्म करके उनको दिखाएंगे। तो आइए आज कुछ ऐसे ही बच्चों से बात करते हैं जो कि थिएटर आइटम या स्टेज आइटम करते हैं, और वो कैसे अपने आप को परफॉर्म करके वहाँ पे दिखाते हैं, कैसे मोटिवेट रखते हैं अपने आप को, कैसे इंस्पायर रखते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं उन सभी से। तो आप ऑन स्टेज जो आप जाते हो जब, तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे फील करते हो, कैसे मोटिवेट रखते हो अपने आप को? मोटिवेट तो सबसे पहले तो मैं एक्चुअली थिएटर आर्टिस्ट ही हूँ, तो थिएटर आर्टिस्ट के लिए मोटिवेशन तो यही होती है कि वो स्टेज पर पैर रख दे, स्टेज को रिस्पेक्ट करे, है ना, एक रिस्पेक्टफुली स्टेज पर परफॉर्म करे, है ना, तो वही सबसे ज़्यादा मोटिवेशन होती है। बाकी कुछ फ्रेंड्स होते हैं, और एक बार आप अगर डायलॉग बोलना शुरू हो जाओ या सीन में आना शुरू हो जाओ, इन्वॉल्व होना शुरू हो जाओ, तो आपका उस चीज़ में एक्चुअल में इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है, और आप एक डेडिकेशन वे में आप उस चीज़ को परफॉर्म करते हो। टीम के साथ ये है कि हमारा स्ट्रेस जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। अगर हम सोलो परफॉर्म करते हैं तो ज़्यादा हम कॉन्शियस हो जाते हैं, बट टीम के साथ है, हमें पता है कि सारी चीज़ें कैसे मैनेज करके चलनी है। स्किट होता क्या है, क्योंकि कई बच्चों को या फिर लोगों को पता ही नहीं होता कि स्किट होता क्या है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। स्किट एक फास्ट मूविंग, एक फास्ट पेस ग्रुप एक्ट होता है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम फ़नी होता है। इसमें हम किसी मैसेज को ऐड करते हैं इन अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल और 6 पीपल, कि कोई जो एक मैसेज कन्वे करना हो इन अ फॉर्म ऑफ जोक, इन अ फ़नी वे। करंटली हम 7 मेंबर्स हैं टीम के, जिनमें से ऑब्वियसली कुछ फाइनल्स भी होंगे। तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम अलग अलग तरह के टैलेंट एक्सप्लोर करते हैं। हमें पता लगता है कि वी आर नॉट द ओनली फिश इन द ओशन, और भी लोग हमसे कम एंड हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है। See, basically, as for me, art is a therapy. I like to do art to escape my daily life, and I feel कि everyone should do it. Like, it's nothing, just colors, which actually give us a positivity and a way to reflect our thoughts. So art is basically self-reflecting, and we can express ourselves through it. Where everyone needs art. There is no defined department कि हम अगर business कर रहे हैं, doctor, अगर if I'm studying for MBBS or I'm doing something else, I can't do art. Everyone can do art. Like drawing something on a piece of paper is also art. We just have a perspective to see कि हाँ, this is also art. We can find art around our surroundings. It's not just on paper, it's around us. Like art is a therapy. It also gives us time to think about our life and also take out some time for ourselves. कि छोटे छोटे गमों को आंखों में बसाकर क्या करोगे, छोटे छोटे गमों को आंखों में बसाकर क्या करोगे, बड़े बड़े हादसे तो दिल में उतर जाते हैं। जैसे मुझे पता है कि कॉमर्स के उसमें हिंदी एक सब्जेक्ट नहीं है, तो आप मतलब प्रॉब्लम नहीं आई इसमें? आपने बिल्कुल सही कहा कि कॉमर्स में हिंदी तो होती नहीं है, बट भाषा तो बचपन से सिखाई जाती है ना, और हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। तो हिंदी साहित्य आपकी लाइफ में क्या मतलब कैसा पार्ट प्ले करता है? साहित्य मेरे लिए सिर्फ एक विधा नहीं, यह वह दर्पण है जिसमें समाज का हर एक पहलू झलकता है, कभी एक सवाल बनकर और कभी एक समाधान बनकर। डेली हम कुछ ना नया सीख रहे हैं, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर हम कोई भी अगर आर्गूमेंट ले रहे हैं, उस पर हमारे जवाब देने में और भी अच्छा हो सकता है। पहले से जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बूस्ट हुआ है, और जो फियर होता था स्पीच का वो भी काफ़ी ओवरकम हुआ है पहले से। तो आपने पहले किसी इवेंट या किसी कंपटीशन में पार्ट लिया है? नहीं, फर्स्ट टाइम। स्कूल लेवल पे तो मैंने काफ़ी कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट किया था, और कॉलेज लेवल पे जो भी क्विज़ के लिए जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया। मेरी दादी और मम्मा को आता है ये बनाना, तो उन्होंने मेरे को सिखाया है, और जो मतलब मैम ने अब मेरे को डिज़ाइन बताया तो अब मैं वो वाला सीख रही हूँ, और मम्मा जो दादी ने बताया था वो अलग था,
तो मैम ने कहा कि ये वाला ट्राई करो, तो मैं ये वाला करूँगी। अपनी भूल के पश्चाताप हेतु मैं तुम्हें अपना विजय धनुष प्रदान करता हूँ। स्टार्टिंग हमारे से ही थी और नर्वस भी थे थोड़े से, बट इतना हम वो चल गया था। स्टार्ट किया तो काफ़ी अच्छा लगा उस टाइम। हाँ, और अपने अपने करेक्टर में जैसे थे कि हर ने मतलब कि जिसका जो करेक्टर था वो प्रॉपर उसमें गया हुआ था उस टाइम पे। कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि शायद वो करेक्टर छूट रहा है, बट जहाँ पर मुझे लगा फिर मैंने उसको हैंडल करने की कोशिश करी है। फर्स्ट टाइम ही था और बढ़िया रोल मिल गया, तो काफ़ी हैवी था क्योंकि पहली बार इतना बड़ा रोल मिल गया। बड़ा इंटरेस्टिंग था, यानी मैंने ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में राइटिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है, तो ये प्रैक्टिकल कुछ करना काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। हाय निकिता, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका प्राइज़ आया। थैंक यू। तो क्या आपको उम्मीद थी कि आपका यूथ फेस्ट जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ है इस बार, कि आपका प्राइज़ आ सकता है? हाँ, उम्मीद थी। जब हमने मेहनत करी उसके अकॉर्डिंगली तो बिल्कुल लगा था कि हम लोगों को प्राइज़ मिलेगा, पर उसके बाद जब परफॉर्मेंस हुई तो फिर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आई क्योंकि हम लोग कॉस्ट्यूम नहीं चेंज कर पा रहे थे, तो थोड़ा मोरल डाउन भी हो गया और फिर बाद में जब प्राइज़ आ गया तो खुशी भी हुई। तो आपका कोई फेमस डायलॉग जो कि आप बोलना चाहोगे? फेमस डायलॉग एक्सेंट है, फेमस डायलॉग तो नहीं। अगर बताना चाहो यहाँ पे फनी लगेगा। कोई बात नहीं। जय हो पापा जी की जय हो, यही था मेरा फेमस एक्सेंट। काफ़ी अच्छा था। शिनचैन। तो आप इस यूथ फेस्ट की जर्नी से आप पूरे हैप्पी हो? बहुत हैप्पी हूँ, एकदम खुश। थैंक यू। थैंक यू। ਕਾਲਜ ਫਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਟ ਨੱਚੇ, ਫੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੰਟੈਕਟ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਕਾਲਜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੀਮ ਬਣੀ, ਟੀਮ ਜੁੜੀ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ। Hi there, I had a lot of doubts in my mind before coming to the university to attend the Youth Fest. But I must tell you that I am happy and I didn't miss it. I don't know most of the students of my college, but today I feel that they are my friends and my teammates. I have been going to different venues and attending different events, talking to different people, and I feel like they are my friends already. The energy really rubs on you. I was so lucky to see my friends performing the one act play. Although it was based on Mahabharata and we all know the story, but this performance touched certain issues that we are still struggling with. Patriarchy, casteism, and wars fought over trivial reasons. Being a theatre person myself, it really touched a chord inside me, and I'm definitely participating next time. Did you see how excited everybody is? We both went to the fest and had a wonderful time. When I participated in some events and I was there to cheer her. Yes,
I enjoyed it thoroughly. But you saw, I was not the only one. And that's the best part of such events. We get to meet new people and learn new things. And that was so important for me since this is my first year in college and I love the environment. So Venya, why don't you tell me about your experience as a participant? Yes, even as a participant, I enjoyed it so much and gained new experience about the competition. And I hope other students did it as well. Well, that's inspiring. I'm thinking of what to participate in when I get a chance. But this journey was amazing. It seems like I'm getting the hang of it. तो देखा मेरे कंधों पर कितने खुश लग रहे हैं सब। इनकी खुशी में मैं भी थोड़ा मुस्कुरा लेती हूँ। सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनती सीढ़ियाँ। एक अस्तित्व मेरा भी है, लेकिन मेरे अस्तित्व को पूरा तो तुम ही सब करते हो। तो जीते रहो, खुश रहो और मुस्कुराते रहो।